Hello students, I am Satyaprakash. Welcome to Cars Academy of Physics. We are continuing chapter number 2, Units and Measurement, and this is lecture number 7. Okay, 11th Physics chapter number 2, और इटा lecture number 7. Our previous lecture रे हमें discussion करी सारी थी physical quantities, units, dimensions. Okay, so I have tried to चेष्टा करी to show you maximum physical quantities and their unit and dimensions. Okay, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତମକୁ 11th ଆଉ 12th ର maximum physical quantity ର units ଆଉ dimensions ଉପରେ idea ଦବା ପାଇଁ. Okay, maximum ଆଉ ଯଦି ବାକି ଥାଏ खूब कम बाकी था 98% ମୁଁ कवर କରି ସାରିଛି. ओके, तापर हम कौन करथिले प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी बहुत इंपोर्टेंट पिले ताको निश्चय देखो एंड से तमर 11 12 रे सब बेल पई कामेर लागतो. फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस may be added, subtracted or equated, but there is no such rule for multiplication and division. आपको हमें बढ़िया किरी बुझीचे एंड मु तापी गोटे लेक्चर भी नेइछि एतिक थ्योरी के बुझेइछि प्लस ता ऊपर बेस करी किछि न्यूमेरिकल भी मु कर देइछि. चेष्टा करछि तमर फंडामेंटल बेसिक पॉइंट गुडा के बुझेइबा पा एंड मु होप करिबे आई होप if you follow the lectures carefully and do the assignments carefully, then I hope and I expect and I am sure physics will be very easy for you. किए कहिला फिजिक्स डिफिकल्ट? लोगों का काम है कहना, कहवा तो लोगों का काम, किंतु मु खाली एति कहि तमे ते रेगुलर प्रैक्टिस भीतर अच्छो एंड सब गुड़ा को बुझुच. फिजिक्स रे प्रथम जिनस हला फीलिंग केते तमे बुझुच केते फील करूच. ओके, ताल तुम पे फिजिक्स ता इजी हो. फिजिक्स की चेष्टा करनी मन रखिबा पई घोषि देबी मन रखि देबी पढ़ी देबी एमती चेष्टा कर. फर्स्ट बुझो ता अंडरस्टैंड द कांसेप्ट द बेसिक आईडिया कोन तक बुझो देन फील इट. तापर ताको भाबी दियो फील करो कोन प्रैक्टिकली होउथिबो. ओके, देन आई एम श्योर यू लव फिजिक्स. ओके, इतने स्टेप जब तुम फॉलो करियो तब फिजिक्स तुम पे बहुत सहज. ओके, स्टार्ट करिवा आज लेक्चर नंबर 7. आज लेक्चर में आमे गोटे बहुत भल पाठ आरंभ करिया को जाउछ. ओके, से हेडिंग है uses of dimensional analysis. Uses of dimensional analysis. हमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला बुझेले प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी बुझेले बा ताको बेस करी किसी न्यूमेरिकल कले. ओके, ता ऊपर किसी यूज हमर आसी गला यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, सो मु प्रथम कहि दोछि आर तीनटा यूज आसीबो. ओके, आज लेक्चर रे हमें गोटे यूज ऊपर पूरा आईडिया आनिबा ता ऊपर किसी न्यूमेरिकल करिवा. न्यूमेरिकल माने प्रूफ करिवा कथा. ओके, ताको हमें बुझिबा तापर आउ दुईटी रहिबो ताको हमें ग्रेजुअली बुझी चलिबा. ओके, there are three uses of dimensional analysis. There are three uses of dimensional analysis. Okay, three uses. तीनटा यूज होछ. Number 1, to check dimensional correctness
of an equation. To check dimensional correctness of an equation. Okay? ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ତ ପଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଟୁ ଚେକ୍ କରେକ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଚେକ୍ କରେକ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ नो to check dimensional correctness of an equation, to check correctness of equation, to check correctness of equation अलगा कथा ताकू मु ए क्लास में तुमको बुझी ओके to check dimensional correctness of an equation हमें भले रे बुझीला सेकंड यूज हला to convert numerical value of a physical quantity from one system of unit to other system of unit. To convert numerical value of a physical quantity from one system of units to other system of units. Okay. हमें आगुर कौन बुझी चलिए magnitude is product of numerical value and unit. n is a numerical value. Okay. So magnitude गोटे unit system रे देइथिबो हमें ताको आउ गोटे unit system को convert करिबा ये भी आसुची second use रे to convert numerical value of a physical quantity from one system of units to other system of units. Last use number 3 to derive an equation or expression तमें जहाँ कोई करेगा to derive an equation. So physics रे equation केमी तैयारी हुए practically फिजिक्स रे इक्वेशन तैयारी हुए एक्सपेरिमेंट फिजिक्स रो डेफिनेशन ने हमें तक बुझी सारछे ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन से मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट परे जो डिस्क्राइब करबा को पड़े दुई प्रकार रो डिस्क्रिप्शन आछे गोटे हला थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन हमें तक बुझेई करी लिखिबा ओके सेकंड रे आसीबो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव मान मैथमेटिकल इक्वेशन ले हमें ताको बुझेइबा सेटा होची इक्वेशन ओके टू डिराइव एन इक्वेशन फिजिक्स रे इक्वेशन एक्सपेरिमेंट रो आसी था किंतु हमें ताको डायमेंशनल एनालिसिस मेथड रे एक्सप्रेस करबा ओके ए सब गुडा को हमें ब्रीफली एनालिसिस करिबा भलो भाव रे देखिबा तापरे न्यूमेरिकल करिबा कारण ए सब तमर फ्यूचर पई बहुत इंपोर्टेंट इवन तमे जो कॉम्पिटिटिव पई ड्रीम रखिछ नीट हो जेडब्ल्यू हो बा कोनो से कॉम्पिटिटिव हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट तम कामे लागिबो नॉट ओनली दिस ए सब्जेक्ट पूरा फिजिक्स 11 12 फिजिक्स पई हाईली यूजफुल सब्जेक्ट ओके सो ये थिला तीनटा यूज हमें फर्स्ट यूज आदि बुझिबा टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन को करेक्टनेस डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बस आज लेक्चर पे हमें गोटे डिस्कशन करबा आगो बुझिबा तापर किसी रिवाइजल करबा ओके एन इक्वेशन is said to be dimensionally correct बोले कि नहीं इक्वेशन करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट an equation is said to be dimensionally correct इक्वेशन माने कौन पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें इक्वेट करथवा इज इक्वल टू करथवा लेफ्ट साइड के राइट साइड संगे तार an equation is said to be dimensionally correct if each
term in LHS, left hand side of each term in LHS have same dimensions or dimensional formula. तुम जहाँ भी लिखी पारियो. Each term in LHS have same dimensions as that of each term in RHS. So an equation is said to be dimensionally correct. What equation का मैं dimensionally correct से किसी बड़े कहिबा. If each term in LHS left hand side रे जेते term थिबे, each term in LHS have same dimensions as that of each term in RHS. Okay. So right side रे जेते term थिबे और left side रे जेते term थिबे ताको हम समान डायमेंशनल फॉर्मूला अछि कि नाही चेक करिबा. जदि से सब गुडा को लेफ्ट साइड रे सब टर्म और राइट साइड रे सब टर्म ईच टर्म ताको डायमेंशन बा डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था ताला हम कहिबा दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. खाली इज इक्वल टू काहे विभिन्न प्रकार रो सिंबल थाई पारे. सिंबल माने कोन इज इक्वल टू थाई पारे. ओके प्लस थाई पारे. जदि लेफ्ट साइड रे किसी एडिशन हे बा राइट साइड रे किसी रिजल्ट आमे पाई छी प्लस साइन थिबो समान कर डायमेंशनल फार्मूला समान थिबा दरकार. ओके जदि आमे लिखिबा x + y आमे तो ऐड करि परिबा इज इक्वल टू तो जहा हो देखिबा x + y = z ताले x को y सागर हम केते ऐड करिबा. जदि x और y रो डायमेंशनल फार्मूला सेम था ताले हम ऐड करि परिबा नल करि परिबा. सो इज इक्वल टू सिंबल थिले x y रो डायमेंशनल फार्मूला सेम से डायमेंशनल फार्मूला z संगे समान होबा दरकार न से डायमेंशनली करेक्ट ही परिबो. पॉजिटिव x + y करे ताले x रो डायमेंशनल फार्मूला y रो डायमेंशनल फार्मूला सहित सेम होबा दरकार नले हम ऐड करि परिबा. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी नेगेटिव साइन दिखाई पार और लेस देन सिंबल ग्रेटर देन सिंबल जहां भी था. तो फिजिकल क्वांटिटी भितरे ए सब सिंबल जदि अछि तल सेमानकर डायमेंशनल फार्मूला निश्चय श्योर समान थिबा दरकार. न आमे तंक भितरे ए सब सिंबल देई परिबा नाही. मो लिखि परिबि कि a is less than a, height is less than mass. No, mass अलग. मास को हमें मास संगे कंपेयर करिबा. हाइट के ना हाइट संगे कंपेयर करिबा. मास को मास संगे कंपेयर करा जिवो हाइट के हाइट संगे कंपेयर करा जिवो. ओके बुझे होछि ठीक अछि. हां हम कहइबा पे कहि दबा ए लोकर मास बहुत अछि किंतु हाइट कम अछि एमते हम कहि दउछ. किंतु हाइट के मास संगे हम कंपेयर कर परिबा. हाइट अलग क्वांटिटी मास अलग क्वांटिटी. ओके सो हाइट लेस देन मास किसी मीनिंग आसीबो कारण हाइट ता आसीबो मीटर मास आसीबो केजी ताल मीटर ता केजी अपेक्षा केमति कम होला. मीटर ता मीटर अपेक्षा कम हबो केजी ता केजी अपेक्षा कम हबो 2 केजी 10 केजी अपेक्षा कम. ओके हम एमते कंपेयर कर नै करियो. दिस इज फंडामेंटल आईडिया. ओके इतना to check dimensional correctness of an equation मो भाबो छै याक भलरे बुझि थबो. क्लियर हैला क्लियर. each term in LHS of an equation have same dimensional formula or same dimensions as that of each term in RHS, then the equation is said to be dimensionally correct. Okay start करिवा किसी नो ने जाओ. नंबर 1 बहुत सारा आको तमे पूर्वरु जानि छ सिंपल इक्वेशन नु स्टार्ट करिवा. ओके अवश्य ई सिंपल नो कंपोजिट इक्वेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन नु फास्ट नो छ v = u प्लस और माइनस तमे जहां नहीं पारिबो एटी जनरली हम प्लस नो छ v = u + 8. तल v को फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी आरंभ रे केते वेलोसिटी थिला. ओके ए हला एक्सेलरेशन टी हला टाइम
ये सब हम जानि ताल ए इक्वेशन को हम चेक करबा दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और डायमेंशनली रॉन्ग ओके तो को जाइतो चेक दिस गिवन इक्वेशन whether it is dimensionally correct or dimensionally wrong हम फर्स्ट कोन नोच पे LHS लेफ्ट साइड रे कोन अछि v is velocity फाइनल वेलोसिटी हो इनिशियल वेलोसिटी हो जो वेलोसिटी हो वेलोसिटी ताल वेलोसिटी रो डायमेंशनल फार्मूला कोन थिले m to the power 0 l to the power 1 t to the power -1 मीटर पर सेकंड लेंथ बाय टाइम ताल आसीना तापरे RHS राइट साइड रे फर्स्ट टर्म कोन अछि ईच टर्म इन LHS should be dimensionally same with each term in RHS ता लेफ्ट साइड रे गोटे टर्म थिला राइट साइड रे दुईटी टर्म अछि फर्स्ट टर्म अछि u means initial velocity dimensional formula velocity again same रहियो v velocity u velocity final velocity initial velocity dimension change kind of same अछि सेकेंड क्वांटिटी कौन अछि at रो डायमेंशनल फार्मूला a इज एक्सेलरेशन m to the power 0 l to the power 1 t to the power -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंथ बाय टाइम स्क्वायर आउ कितने मिला t अगर पुट कर दबा t to the power 1 तो सॉल्व कर दे m to the power 0 l to the power 1 t to the power -1 एबे देखिबा लेफ्ट साइड रे गोटी क्वांटिटी अछि तार डायमेंशनल फार्मूला m to the power 0 l to the power 1 t to the power -1 राइट साइड रे दुईटी क्वांटिटी रहिला तार फर्स्ट क्वांटिटी बा फर्स्ट टर्म ईच टर्म ये गोटे टर्म थिला लेफ्ट साइड डायमेंशनल फार्मूला पाइले राइट साइड रे फर्स्ट टर्म u रो डायमेंशनल फार्मूला बाहर कर सेकंड टर्म at रो डायमेंशनल फार्मूला बाहर कर एबे देखिए ईच टर्म इन LHS have same dimensional formula as that of each term in RHS. So this equation is dimensionally correct. अब हम कंपोजिट इक्वेशन कहबा कंपोजिट माने कोन थिले एठी प्लस अछि v is equal to u plus it plus minus एगुडा सब रही गले आमे ताको कंपोजिट इक्वेशन बोले कहबा ओके एथला फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड आउ किसी एग्जांपल आर क्वेश्चन आमे करियो सेकंड क्वेश्चन कंपोजिट की पुनी परे आसीबा जनरल क्वेश्चन को बताउछी नंबर 2 सपोज दिस h is equal to h means height सब क्वेश्चन में मेंशन कर देथबो ऑब्जेक्टिव पॉइंट रे ऑब्जेक्टिव बाय MCQ क्वेश्चन में तमे देखिबो h er height h is equal to r rho g divided by 2s cos theta given equation so h is height r is radius okay h is height r is radius rho is density g is acceleration due to gravity so acceleration बर्तमान में बुझिबा acceleration h is equal to surface tension ये सब हमको मेंशन करना where h is height r is radius rho is density g is acceleration due to gravity s is surface tension then check this equation कौन हमें चेक करिबा whether it is dimensionally correct or dimensionally wrong first हमें कौन लगा थे LHS वाला लेफ्ट साइड में कौन से h means height कौन मीटर length टर्म इसे हमें कौन लिखिबा l to the power 1 लिखिले हबो और m to the power 0 l to the power 1 t to the power 0 height means length ओके तापर आसीला राइट साइड RHS रे टोटल क्वांटिटी केता होची r rho g by 2s cos theta r rho g by 2s cos theta देखो पिला में प्रीवियसली डिस्कशन कर दी 2 is number 2 बटे नंबर डायमेंशनल डायमेंशन रहिबन 2 नंबर एनी नेचुरल नंबर 2 बटे नेचुरल नंबर तार यूनिट नाही कि डायमेंशन नाही तार 2 रो डायमेंशन नाही cos थीटा
एगेन cos थीटा रा डायमेंशन नहीं मु कोई cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री थीटा प्लेस रे 60 बसेबा cos 60 केते 1/2 cos 60 1/2 तार किसी डायमेंशन रहबनी ताले 2 रा डायमेंशन नाही cos थीटा रा डायमेंशन नाही बाकी रहला r कोन थिले r हला रेडियस मींस लेंथ लिखिले कोन l टू द पावर 1 पॉसिबल लिखुते लास्ट को हम m t सब लिखिबा रेडियस को हम कोथरे मेजर करिया मीटर मींस लेंथ रो हला डेंसिटी ये सब हम आगुर कर सारछे डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम और मास बाय लेंथ क्यूब m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 मास बाय वॉल्यूम और मास बाय लेंथ क्यूब तापर हला g मींस एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंथ बाय टाइम स्क्वायर लेंथ 1 टाइम टू द पावर -2 divided by 2 has no dimensions cos theta has no dimension बाकी रहला के सरफेस टेंशन देखो फिर सरफेस टेंशन नो फार्मूला में कौन लेते फोर्स पर यूनिट लेंथ तो इसी केवल डायमेंशनल फार्मूला नबा सरफेस टेंशन 2 आउ cos थीटा डायमेंशनल फार्मूला नाही सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर -2 ताला तो सॉल्व कर दवा केता होचे देखो m1 गेट कैंसिल m1 कैंसिल हो गला इसे देखो l टू द पावर 1 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 केते हला l टू द पावर 2 l टू द पावर 2 बाकी रहला इसे l टू द पावर -3 l टू द पावर -3 कोन आछला इसे l टू द पावर -1 ताले ठीक है t टू द पावर -2 t to the power -2 t to the power -2 t to the power -2 कैंसिल होगा इसे कौन आछी लेंथ टू द पावर -1 तर अको हम कंप्लीट फॉर्म रे केमते लिखिबा l टू द पावर -1 को m टू द पावर 0 l टू द पावर -1 t टू द पावर 0 ताले पर कंपेयर करिबा लेफ्ट साइड रे डायमेंशनल फार्मूला m to the power 0 l to the power 1 t to the power 0 right side dimensional formula m to the power 0 l to the power -1 t to the power 0 तर dimensional formula left side रे गोटी टर्म अछि तार dimensional formula right side रे एटा को हम गोटी टर्म लेले तार dimensional formula इक्वल हला कि l to the power 1 एथे l to the power -1 इक्वल हला कि नो So this equation is dimensionally wrong. Okay, किंतु मु एठी करी तमे लिखि पारिबो this equation dimensionally न लिखि कि तमे लिखि पारिबो this equation is wrong. काहे कि wrong मासुची से पॉइंट ओके खाली डायमेंशनली रॉन्ग नो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग इक्वेशन ठीक न ओके मु कोन कहिथिबे तबे फिजिक्स रे इक्वेशन हम केमिति तयारी कर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देन मेजरमेंट देन एक्सप्रेशन ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट रो जहा आसीबो हमें ताको एक्सप्रेशन बा इक्वेशन हेल्प रे करथाओ तार ऑब्जर्वेशन जहा आसीथिबो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जहा आसीथिबो सेटा को हम इक्वेशन में एक्सप्रेस करू ओके तो सेही एक्सप्रेशन को यूज करी जदि ए सब गुडा कर वैल्यू देई थाए अब हाइट रे वैल्यू बाहर करबे एटा कैपिलराइज तमर मेकानिक्स ऑफ फ्लूइड रे पढिबो कैपिलराइज ओटे ट्यूब टा को वाटर रे पडे देले पतला थी तार भीतर वाटर टा ए जाय वाटर अछि हम ट्यूब टा को तार भीतर इंसर्ट करले वाटर टा किछि बाटा ऊपर को उठी जाय ताको जाय कैपिलराइज हम तक तो पढिला सब्जेक्ट रे बाकी ए फार्मूला को जदि हम यूज करिबा ताले एच बाहर कर पारि किंतु ए डायमेंशनली करेक्ट आसिला सॉरी रॉन्ग आसिला किंतु हमें कोन कहूचे दिस इक्वेशन इज रॉन्ग तमने काहे के रॉन्ग हमें आपको यूज करले हाइट रो वैल्यू बाहरिबो नाही जहा बाहरिबो भूल बाहर त डायमेंशनली करेक्टनेस रहिबा तल हाइट रो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बाहर करि थांते हमें भूल बाहर करिबा तल प्रथम कथा हमें कोन पाउचे
this equation is numerically wrong. then height numerical value ठीक बाहर नहीं. this equation is numerically wrong. तापर हमें कौन प्रूव करे? डायमेंशनली रॉन्ग. डायमेंशन भी समान नहीं, डायमेंशनली रॉन्ग. तब this equation is numerically wrong, dimensionally wrong. then this equation is not correct. ना डायमेंशनली करेक्ट अच्छे ना न्यूमेरिकली करेक्ट अच्छे. तुम दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट. एट हमें लिखी पाएगा. ओके देखिए नंबर 3 और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल अच्छी. जस्ट टू इट था क्वेश्चन नंबर 3 रे बनेली बहुत इजी. तुम जानि छ g is equal to gm by r square. g is acceleration due to gravity, small g. कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें बाहर कर सकते डायमेंशन. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m is mass of earth माने मास, r is radius of earth. अगेन रेडियस माने लेंथ. तब LHS चेक कर दो लेफ्ट साइड. g है एक्सेलरेशन, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, m to the power 0 l to the power 1 p to the power -2 कंप्लीट. RHS से टर्म किया रहेगा gm by r square, gm by r square. तब जीरो डायमेंशनल फॉर्मूला वन पता के लिए f r square by m1 m2 न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ଆମେ ଆକୁ କରିଛେ. फोर्स प्लेस रे रफ रे करछि m1 l1 t -2 r square माने लेंथ स्क्वायर मास इनटू मास m to the power 4. तब g प्लेस रे ଆମେ केते लिखिला m to the power 1 l to the power 3 sorry m to the power -1 l to the power 3 t to the power -2 इतला g. तब into m है कौन होगा m to the power 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. r है रेडियस वाला लेंथ स्क्वायर. आपको सॉल्व कर दो m to the power 0 m to the power -1 m to the power 1 m to the power 0. इसे देखो l to the power 3 डिवाइडेड बाय l to the power 2 कितना है l to the power 1 t to the power -2. so this equation is correct. तमाने डायमेंशनली करेक्ट न्यूमेरिकली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट न्यूमेरिकली करेक्ट. कारण ये होची एक्सप्रेशन द रिजल्ट एगेन हमें प्रूव करले डायमेंशनली करेक्ट. सो एक्सप्रेशन में इता बाहर की तमे ग्रेविटेशन में पढ़िबो. सो एक्सप्रेशन जोटा आसीबो से न्यूमेरिकली करेक्ट. एगेन हमें प्रूव कर देले डायमेंशनली करेक्ट. सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट. करेक्ट वन dimensionally correct and numerically correct. Dimensionally correct and numerically correct. Okay. Out the equation तो मैं देखो उसी. नंबर तो भूली जा. tan theta is equal to rg by v square. Check this equation. tan theta is rg by v square. R is radius, g is acceleration due to gravity, v is velocity or speed. तमें जाना हो. तब फास्ट LHS ना LHS है कौन सी tan theta. tan theta मु कोई भी tan 30 डिग्री 1 by √3 tan 60 डिग्री √3. तो तार इवन इतना है डायमेंशन लेस m to the power 0 l to the power 0 t to the power 0. तापर है RHS रे टर्म कौन रहेगा rg by v square. r is radius means length, g है acceleration l to the power 1 t to the power -2 v square speed है l to the power 1 t to the power -1 square करले l square t to the power -2. देखो velocity dimension कौन length by time v square ଅଛି l to the power 2 t to the power -2. आपको सॉल्व कर दो. L1 l to the power 2 divided by l to the power 2 कितना है l to the power 0 t to the power -2 t to the power -2 ये कैंसिल हो जाएगा t to the power 0 बाकी मास तो नहीं l to the power 0. पहले सर दिमाग कौन दबा देखो लेफ्ट साइड रे डायमेंशनल फार्मूला जहां राइट साइड रे डायमेंशनल फार्मूला से या. सो दिस इक्वेशन is dimensionally
करेक्ट ठीक है किंतु किंतु दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट ए क्वेश्चन करेक्ट ना मु लिखी करेक्ट कौन लिखिली डायमेंशनाली करेक्ट एक्सप्रेशन जोटा आसी साइंटिफिक एक्सप्रेशन आम जहाँ पाई सेटा न्यूमेरिकली करेक्ट होता ये प्रॉपर इक्वेशन नुह आपको तुम पढ़ मोशन ऑन ए प्लेन मोशन ऑन ए प्लेन मोशन ऑन प्लेन में तुम बुझ सर्कुलर मोशन tan थीटा र फार्मूला से बाहर v²/rg एटा होची करेक्ट v²/rg हला करेक्ट इक्वेशन तम एई फार्मूला यूज कला v र वैल्यू बा थीटा र वैल्यू बा रेडियस र वैल्यू जा पचारथिबा हम पाइबा किंतु ए फार्मूला हमको मिलिबो नाही सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली रॉन्ग आपको यूज कले ए फार्मूला यूज कले आमे ठीक आंसर पाइबा नाही कारण एटा एक्सप्रेशन रिजल्ट ए आसीनी एटा तो आमे सब धीरे धीरे बुझिबा जानिबा सब सब्जेक्ट गले तमे जानिबो बस क्वेश्चन नंबर 5 आउ किसी सुंदर सुंदर इक्वेशन अछि क्वेश्चन नंबर 5 v is equal to square root of e by rho v is velocity of sound velocity e is modulus of elasticity rho is density of medium बस एगुड़ा हमको मेंशन करछि वी हैव टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन सो प्रथम कहि देबी दिस इक्वेशन इज न्यूमेरिकली करेक्ट किंतु तमे परे कोन जानिबो दिस इक्वेशन इज नॉट न्यूमेरिकली करेक्ट काहे कि ए इक्वेशन ठीक अछि दिस इज करेक्ट किंतु न्यूटन्स लॉ रे प्रूव हेतला दिस इक्वेशन इज न्यूटन्स लॉ रे प्रूव होला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मीडियम तब परवर्ती फेज रे ई प्लेस रे p निया जाइतला p बाय रो सेतरे साउंड रो वेलोसिटी रो प्रॉपर फार्मूला बाहर नथिला किंतु ए फार्मूला ठीक अछि सॉरी ए फार्मूला भूल हो किंतु एटी p बाय रो लिखितले भूल दी तापर लाप्लास करेक्शन में से ठीक आसला तो साउंड रे पडियो वर्तमान तमे कंफ्यूज होन एटा न्यूमेरिकली करेक्ट ओके दिस इज न्यूमेरिकली करेक्ट हमें चेक करबा डायमेंशनली करेक्ट के नाही ताले LHS is v velocity of sound रहो का जो बॉडी रहो velocity m to the power 0 l to the power 1 t to the power -1 length by time तापर असला RHS रे कोन अछि square root of e by e हला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहि सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला बेले डायमेंशनल फार्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला दबा रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला m to the power 1 l to the power -1 t to the power -2 प्रीवियस लेक्चर में प्रेशर का रिसर्च मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कौन थे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब बस एतर कोन आसला चेक कर स्क्वायर रूट डायमेंशनल फार्मूला लिखुचे m1 कैंसिल l to the power 1 l to the power -3 केते होला l to the power 2 t to the power -2 पूरा सॉल्व कर दे रूट ओवर उठेइए मास नाही m to the power 0 रूट ओवर नहीं गले l to the power 1 t to the power -1 सो डायमेंशनल फार्मूला सेम आसीगला प्रथम रो हमें बुझी से दिस इज न्यूमेरिकली करेक्ट सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट माने न्यूमेरिकली करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट पूरा करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो भूली गल लेट 6 ठीक अछि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम ऑसिलेशन बा वाइब्रेशन कर तमे जानि छ सो time period of simple pendulum is given as t is equal to 2 pi root of l by g t हला time period
लेंथ L हला लेंथ G हला एक्सेलरेशन 2 पाई पाई has no dimensions हमें डिस्कशन कर सकते पाई मींस 22/7 तार डायमेंशन नहीं 2 रो डायमेंशन नहीं तो LHS में नहीं हुआ कौन सी टाइम पीरियड माने टाइम m to the power 0 L to the power 0 time 1 t to the power 1 LHS complete RHS में कौन होगा 2 pi has no dimension dimensional formula root of L by G तर root of length ना dimensional formula m to the power 0 L to the power 1 t to the power 0 only length G complete L to the power 1 t to the power minus 2 m0 को लिखिलु दरकार पे फाइनली हमें लिखिलु तो कितने आश्चर्य रूट ऑफ m to the power 0 L1 कैंसिल है L to the power 0 t to the power 2 बस इस पर फाइनल आंसर कौन आएगा m to the power 0 L to the power 0 t to the power 1 root over देगा so this is dimensionally correct also this equation is numerically correct so this equation is एमती में लिखी पाइलो both dimensionally and numerically correct okay this equation is correct both dimensionally and numerically okay question number 6 then question number 7 देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन नंबर 7 frequency f is frequency is 1 by time period तमे जाने छ is equal to 1 by 2l L means length root of t by m root of t by m इसे हम लिख दो उसी f is frequency L is length t is tension surface tension no tension in a string सूता और थ्रेड तमे जहां लिखियो m कौन है थी m हला mass per unit length mass per unit length ओके हम चेक करियो f is frequency first LHS नवा frequency is 1 by time period or 1 by time m to the power 0 L to the power 0 t to the power minus 1 frequency then right side कैसे RHS 1 by 2 has no dimension 1 by 2 रो dimension नहीं तर dimensional formula में नपाकार 1 by L 1 नो नहीं 2 रो नहीं 1 by L लिखी into root of t by तर आपको सॉल्व करिबा 1 by L है कितना आसीला L to the power minus 1 L to the power minus 1 आपको लगा रख दे 1 by L to the power minus 1 root of तापर dimensional formula root of t माने टेंशन एक मन रखबे dimensional formula tension is same as that of force रो dimensional formula द्वारा टेंशन न सेला तब टेंशन डायग्राम में कितना होगा फिर m to the power 1 L to the power 1 t to the power minus 2 force sin समा divided by m इसी m mass नो m को mass per unit length दाखवा में लिखिबा mass divided by length mass per unit length mass divided by length m जगह में कौन बना थे m to the power 1 mass divided by length L to the power minus 1 इस टोटल डायमेंशनल फार्मूला में बाहर करियो L to the power minus 1 इसे कैसे आपसे देखो रूट ऑफ m1 कैंसिल L to the power 1 divided by L to the power minus 1 L to the power 2 L to the power 1 L to the power 2 t to the power minus 2 अब तो इसका सॉल्व कर दो कितने आएगा ये रही थी L to the power minus 1 इसे कितना रहेगा L to the power 1 t to the power minus 1 ऐसा फाइनल फार्मूला देखो L to the power minus 1 L to the power 1 तो L to the power कितने आला 0 रहिला कितने t to the power minus 1 सॉल्व कर दो n to the power 0 L to the power minus 1 L to the power 1 0 बाकी रहेगा t to the power minus 1 देखो LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन साइन समान अगेन दिस इज न्यूमेरिकली करेक्ट तमे तो वाइब्रेशन पढ़िबो ओके वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वेव सब्जेक्ट रे सेतबले देखियो एटा ठीक अछि
experiment कारण आम एटा को यूज करबा so this equation is both numerically and dimensionally correct left side dimensional formula right side dimensional formula side समान also this is numerically correct आम जानिबा ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन सपोज 8 v is equal to pi p r to the power 4 divided by 8 eta l अपनी eta ओके এটা पाइडल इस इक्वेशन बहुत बढ़िया इक्वेशन आपरे न्यूमेरिकल बहुत रहे এটা मेकानिक्स ऑफ फ्लूइड रे आसीबो फ्लो ऑफ फ्लूइड इन मोशन तार की कोन लिखि दो v is rate of flow of liquid so specifically आपको हमने लिखिबा volume of liquid flowing per unit time rate of flow of liquid by volume of liquid flowing per unit time ओटे पाइप रे लिक्विड फ्लो होछि ओटे पाइप भीतर लिक्विड फ्लो होछि 1 सेकेंड रे केते वॉल्यूम रे लिक्विड आछि एमति बुझिबा ताले p कोन पे प्रेशर डिफरेंस एक्चुअली द प्रेशर डिफरेंस हम तो प्रेशर लिखिबा r is radius eta को हमें कहिबा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा को आगु करि सारछे हमें क्लास में l हैला लेंथ बस एथरा और किछ असुविधा रे हमें चेक कर दो LHS v माने कोन पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ताले वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम ताले इसे मास नाही m टू द पावर 0 वॉल्यूम माने l टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टाइम t टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टाइम वॉल्यूम माने लेंथ टू द पावर 3 वॉल्यूम होला मीटर क्यूब बाय लेंथ क्यूब ओके देन RHS को आसे RHS रे टोटल का को नबा देखो पाई रो डायमेंशन नाही 8 रो डायमेंशन ना पाई माने 22 बाय 7 8 तो नंबर एमान कर डायमेंशन नाही तो ताको प्रथम रो लेली त डायमेंशनल फार्मूला का p r to the power 4 divided by eta p कोन के प्रेशर एथर डायरेक्ट कर दो छी तुम प्रीवियस लेक्चर निश्चय फॉलो करो निश्चय प्रैक्टिस करो p हैला प्रेशर कोन के m to the power 1 l to the power -1 p to the power -2 force by area radius to the power 4 radius है length to the power 4 divided by eta है coefficient of viscosity मन पका जेतल डायमेंशनल फार्मूला बाहर करथिले मु पढिथिली बहुत इंपोर्टेंट सब बेले कैमरा लागिबो ओके तार डायमेंशनल फार्मूला कोन थिले m to the power 1 l to the power -1 t to the power -1 तापर रहला length l to the power 1 तो सॉल्व कर दो देखो कोन आसिला m to the power 1 m to the power 1 कैंसिल l to the power -1 l to the power -1 कैंसिल ओके तापर इसे देखो मास रहिला m to the power 0 आसीगला इसी के साथ ये तो कैंसिल इसी l to the power 3 divided by l to the power 1 कितना आला l to the power 3 सॉरी l to the power 4 divided by l to the power 1 length to the power 3 आसीगला इथि अछि टाइम टू द पावर -2 इथि अछि टाइम टू द पावर -1 तल केते हो इथि t टू द पावर -1 देखो लेफ्ट साइड डायमेंशनल फार्मूला राइट साइड डायमेंशनल फार्मूला सहित समान अछि इक्वल अछि अगेन दिस इज Poiseuille's relation a relation the experimentally correct अछि so this equation is both numerically and dimensionally correct stamp both numerically and dimensionally correct okay next question composite equation का आसीलो आउ गोटी दुईटी क्वेश्चन कंपोजिट इक्वेशन मत में आंसर कभी चिंता करबो वीडियो पॉज कर दो आंसर चिंता करबो नेक्स्ट सपोज 9 मो लिखि v square is equal to u square plus as v square is equal to u square plus as एक क्वेश्चन तो प्रीवियसली कोन ओटे जानि v हला फाइनल वेलोसिटी u हला इनिशियल वेलोसिटी a हला एक्सेलरेशन a हला डिस्प्लेसमेंट
give idea about this equation A, this equation is A. Only dimensionally correct. Only dimensionally correct. B. Only numerically correct. C. Dimensionally correct. Dimensionally correct, but numerically wrong. Okay. D. Numerically correct. Numerically correct, but dimensionally wrong. Okay. Video pause करो, चिंता करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Complete. Okay. देखिए actual equation कौन थिले? तमे जानी छो b square is equal to u square plus 2as. हम या को यूज करले जहा पचारथिबो v u a s साबे पाई करेगा. ओके जोटा पचारथिबो किंतु एथरे प्रथम कथा कोन 2 नाही 2a से 2 नाही. तल ए इक्वेशन को यूज करले सपोज u a s देछि v पचारथि. तल ए इक्वेशन यूज करले हमें वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी correct answer पाइबा नाही. So this equation is numerically wrong. Okay, but dimensionally correct. Dimensionally correct इसे लिखा है only dimensionally correct. हवन क्या numerically wrong अछि ताले एटा कोन रहइला C. Dimensionally correct but numerically wrong. तमे को निजे चेक करि पारियो. Dimensional correctness v square velocity square. Dimension कौन हो? Velocity means m to the power 0, l to the power 1, t to the power minus 2, square अच्छी, l to the power 2, t to the power minus 2. ये LHS सर ये LHS तब RHS सर कौन अच्छी? First term number 1 u square. तो u square means same velocity same. ये final velocity initial velocity dimensional formula again same. m to the power 0, l to the power 2, t to the power minus 2. ये velocity square ये भी velocity square बाकी रहेगा as second term as का dimensional formula acceleration m to the power 0 l to the power 1 t to the power minus 2 acceleration as का कौन displacement l to the power 1 आपको solve कर दिया m to the power 0 l to the power 2 t to the power minus 2. Each term in RHS have same dimensional formula as that of the term in LHS. So this is dimensionally correct but numerically wrong. Same भाई तमे चेक करि पारियो. आउ जहा इक्वेशन तुमको पता रहथिबो तमे आप निजे चेक करके देखिबो. AC is equal to ut plus half ap square. AC is the displacement, u initial velocity, t is the time, a is acceleration. LHS. This is numerically correct. Equation तमे जानि छो. LHS रे displacement means length m to the power 0 l to the power 1 t to the power minus 1. RHS first term के अछि ut u हला initial velocity t हला time velocity m to the power 0 l to the power 1 t to the power minus 1 time t पाई न t to the power 1 solve कर दे केता आछला m to the power 0 l to the power 1 u t. Sorry first term of u square u square है ut. Oh I have seen it. No हम यही क्वेश्चन यूज करछि ut ठीक अछि t. AC is equal to ut plus half it square ut. Oh AC is displacement means length not velocity. AC is displacement in the length l to the power 1 then ut u है m to the power 0 l to the power 1 t to the power minus 1 u t है time t to the power 1 आपको solve कर दी m to the power 0 l to the power 1 t to the power 0.
सेकंड मीटर कौन हाफ इट स्क्वायर हाफ रो डायमेंशनल फार्मूला नहीं तो इट स्क्वायर बाहर करबा इट स्क्वायर ए है एक्सेलरेशन n टू द पावर 0 एक्सेलरेशन लेंथ बाय टाइम स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर t टू द पावर 2 बस आपको सॉल्व कर दिया n टू द पावर 0 n टू द पावर 1 t टू द पावर 0 so left side dimension each term in RHS have same dimension. This equation is both numerically correct and dimensionally correct. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ତମ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଥିବ ଓକେ ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ସ୍ପିଡ୍ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରି ଲେକ୍ଚର ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଗଲି ସ୍ପିଡ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଦେବି ଏଇଟା ୟୁର ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଥିଲି ସୋ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଲେକ୍ଚର in second lecture sorry in next lecture ଆମେ କଣ କରିବା to convert numerical value of a physical quantity from one system of units to other system of units at the lecture conclusion an equation may be dimensionally correct but numerically wrong okay numerically correct but dimensionally wrong सेमती एग्जांपल एक्सेप्शनल कोट हे पार प्राय हमर फिजिक्स रे इक्वेशन गुडाक प्लस माइनस इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन हम सेम फिजिकल क्वांटिटी हम ओके थैंक्स चिल्ड्रन थैंक्स फॉर योर सपोर्ट